کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے وہ لمحہ جب آپ نماز پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں، آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں، آپ کا جسم حرکت کرتا ہے، آپ نے ابھی ابھی دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے اپنا سر جھکایا تھا، لیکن جب آپ اپنے دل میں جھانکتے ہیں وہاں کچھ نہیں ہوتا، بالکل خاموشی، ایک عجیب سا خالی پن، جیسے آپ وہاں تھے ہی نہیں، جیسے آپ نے بس ایک ایکسرسائز کی ہو، اٹھنا، بیٹھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور آپ سوچتے ہیں کہ میں تو اللہ کے سامنے کھڑی تھی، پھر مجھے وہ سکون کیوں نہیں ملا جس کا وعدہ قرآن میں کیا گیا ہے، میری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آئے، میرا دل کیوں نہیں کانپا، اور پھر ایک ڈر سا لگنے لگتا ہے، ایک ٹھنڈا سا ڈر جو آپ کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ کیا میرا ایمان کمزور ہو گیا ہے؟ کیا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ میں منافق تو نہیں ہو گئی؟ اگر آج آپ یہ سن رہے ہو اور آپ کے دل میں بھی یہی سوال ہے تو گھبرائیے نہیں، آپ اکیلے نہیں، بالکل بھی اکیلے نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم جیسے بہت سے لوگ ہیں جو اسی خالی پن سے گزر رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز ہمیں پڑھ نہیں رہی ہوتی، ہم اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں پر ہمارا دھیان دنیا کے شور میں ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانا چاہتی ہوں، اس کا نام فاطمہ تھا۔ پارٹ 1، فاطمہ کی زندگی۔ فاطمہ 36 ایئر کی تھی۔ اگر آپ دور سے دیکھتے تو کہتے اس کی زندگی تو بالکل سیٹ ہے، اس کے پاس ایک اچھی جاب تھی، اپنی خود کی کار تھی، ایک لونگ فیملی تھی، ہسبینڈ، بچے جو اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اور سب سے بڑی بات فاطمہ دین سے دور نہیں تھی۔ وہ کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جو اللہ کو بھول گئی ہو، نہیں، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، صبح کی نیند کو چھوڑ کر فجر کے لیے اٹھنا، دن بھر کی تھکا دینے والی جاب کے بیچ بھی ظہر، عصر کے لیے وقت نکالنا، رات کو سونے سے پہلے عشاء پڑھنا، وہ یہ سب کرتی تھی۔ لیکن فاطمہ کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی تھی، ایک ایسی جنگ جس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں تھی۔ جب بھی فاطمہ اللہ اکبر کہتی اور اپنے ہاتھ باندھتی، اس کا جسم تو قبلہ کی طرف ہوتا پر اس کا دماغ کہیں اور ہی بھٹک رہا ہوتا۔ کبھی آفس کی پالیٹکس، کبھی گھر کے کام، کبھی دوست کی کہی گئی ہوئی کوئی بات، اب آنے والے کل کی فکر اس کے دل کو خالی رکھتی تھی۔ وہ اکثر سوچتی تھی، یا اللہ، میں تیرے سامنے کھڑی ہوں، میں تجھ سے بات کرنے آئی ہوں، پر ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں کسی دیوار سے بات کر رہی ہوں؟ مجھے وہ کنیکشن کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ اسے وہ حدیث یاد آتی تھی اور اس کا دل دہل جاتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ یہ سوچ کر فاطمہ کو پسینے آنے لگتے تھے، وہ ڈرنے لگتی تھی کہ اگر میری نماز صرف اٹھنا بیٹھنا ہوا، اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے، تو کیا یہ قبول ہوگی؟ کیا میں صرف نماز پڑھنے کی ایکٹنگ کر رہی ہوں؟ یہ خالی پن اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ نماز پڑھتی تھی سکون پانے کے لیے، لیکن نماز ختم کرنے کے بعد اسے اور زیادہ بے چینی ہوتی تھی، گلٹ ہوتا تھا، شرمندگی ہوتی تھی۔ کیا آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ سجدے میں ہیں لیکن آپ کا دھیان کہیں اور ہے؟ پارٹ 2، وہ شام اور وہ آنسو۔ ایک دن فاطمہ اپنی خالہ کے گھر گئی۔ گھر میں مہمان تھے، شور تھا، ہنسی مذاق تھا۔ عصر کا وقت ہوا، سب نے وضو کیا، نماز پڑھنے چلے گئے۔ فاطمہ نے بھی نماز پڑھی، لیکن آج کچھ الگ تھا۔ نماز ختم کرنے کے بعد سب لوگ اٹھ کر باتیں کرنے چلے گئے۔ فاطمہ بیٹھی رہی، جہاں نماز پر اس نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، لیکن الفاظ نہیں نکلے۔ اسے بس گہری تھکان محسوس ہو رہی تھی، جسمانی تھکان نہیں، روحانی تھکان، سول کی تھکان۔ وہ وہیں بیٹھی رہی اپنے خیالوں میں کہ تبھی اس کی خالہ کمرے میں آئی۔ خالہ نے دیکھا فاطمہ اداس بیٹھی تھی، چہرے پر پریشانی ہے۔ وہ فاطمہ کے پاس گئی اور پوچھا، کیا ہوا فاطمہ، تم اداس کیوں لگ رہی ہو؟ پہلے تو فاطمہ چپ رہی۔ ہم بھی وہی کرتے ہیں نا، ہم اکثر چپ رہتے ہیں، ہم اپنی روحانی بیماریوں کو چھپاتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ لوگ جج کریں گے۔ لیکن اس دن فاطمہ کا صبر ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے اپنی نظریں اٹھائی اور خالہ کو وہ سب بتا دیا جو وہ مہینوں سے اپنے اندر چھپا کے رکھ رہی تھی۔ فاطمہ نے کہا، خالہ، میں نماز پڑھتی ہوں، 5 وقت کی پڑھتی ہوں، صحیح وقت پر پڑھتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میرا دل بالکل خالی لگتا ہے، ایسا لگتا ہے بس اٹھنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، بس یہی میری نماز ہے۔ کیا میں منافق ہوں خالہ؟ اللہ نے میرے دل پر مہر لگا دی ہے۔ فاطمہ رو پڑی۔ یہ وہی ڈر تھا جو ہم سب کے اندر ہے کہ کہیں ہم اللہ کی نظر سے گر تو نہیں گئے۔ پارٹ 3، سمندر اور طوفان۔ خالہ نے فاطمہ کو چپ نہیں کروایا، کوئی لیکچر نہیں دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا ایمان کمزور ہے، جاؤ
जाओ तौबा करो। उन्होंने मुस्कुराते हुए फातिमा से के सर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटा तुम अकेली नहीं हो, बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं, ये सुनना आधा इलाज होता है। फिर खाला ने कहा, सुनो फातिमा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, शायद तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाए। खाला ने बताना शुरू किया कि बहुत साल पहले एक मस्जिद में मैं कुरान पढ़ाने जाती थी। वहाँ मेरे साथ एक और औरत भी आती थी। वो औरत बहुत सादी सी थी, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने बड़ी बड़ी अरबी की किताबें नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, जब भी नमाज का वक्त होता वो नमाज के लिए खड़ी होती तो रोने लगती थी, दिखावे के लिए नहीं, ऐसे रोती थी कि कोई बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया हो। उसकी नमाज में ऐसी तड़प थी जो मेरे दिल को चीर के रख देती थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ ही लिया, तुम नमाज में ऐसा क्या सोचती हो कि तुम्हारा ऐसा हाल हो जाता है? तुम ऐसा क्या देखती हो जो हम नहीं देख पाते? उस औरत ने भीगी आंखों से मेरी तरफ देखा और कहा, मैं अल्लाह ताला को और सी यानी समंदर को सोचती हूँ। मैं हैरान हो गई। मैंने पूछा, समंदर, इसका क्या मतलब है? उस औरत ने कहा, सुनो और फर्ज करो तुम एक छोटी सी कश्ती में अकेली हो, चारों तरफ गहरा समंदर है, रात का वक्त है, सब तरफ अंधेरा है और तूफान आ जाता है, लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची हो जाती है, तुम्हारी कश्ती हिचकोले खाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, पानी कश्ती के अंदर आ रहा है, तुम जानती हो कि किसी भी पल, किसी भी लम्हे ये कश्ती डूब जाएगी और तुम डूब जाओगे। बताओ उस वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी? उस डर के माहौल में, तूफान के बीच में तुम्हें अपने कपड़ों की फिक्र होगी? क्या तुम्हें याद रहेगा कि आज खाने में क्या बनेगा? क्या तुम्हें ये याद रहेगा कि किसी ने तुमको बुरा कहा या किसी ने तुम्हारी तारीफ की? उस वक्त तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी रूह बस एक ही जात को पुकारेगी, वो है अल्लाह। तुम्हें पता होगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, सिर्फ वही है जो बचा सकता है, सिर्फ वही है जो इस तूफान को रोक सकता है। वो औरत रोने लगी और कहा कि बस जब मैं नमाज के लिए अल्लाहू अकबर कहती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं इस दुनिया के तूफान में फंसी हुई हूँ। मेरे गुनाह, मेरी परेशानियां, मेरी ख्वाहिशात, ये सब वो लहरें हैं जो मुझे डुबाना चाहती हैं, और ये नमाज वो रस्सी है जो अल्लाह ने मेरी तरफ फेंकी है। ये मेरी नजात है, ये मेरी कश्ती है। अगर मैं इसे मजबूती से नहीं पकड़ा तो मैं डूब जाऊंगी, हमेशा के लिए डूब जाऊंगी। पार्ट 4 रिफ्लेक्शन। फातिमा सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सोचिए जरा, वो तो एक अनपढ़ औरत थी, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उसको ये एहसास था। और हम नमाज को टास्क समझते हैं, एक काम समझते हैं जो बस निपटाना है। जल्दी से असर पढ़ लूं, मार्केट जाना है, जल्दी से इशा पढ़ लूं, नींद आ रही है। हम नमाज को बोझ समझते हैं और वो औरत नमाज को जिंदगी समझती थी। हमें लगता है कि हम जमीन पर खड़े हैं, इसीलिए सेफ हैं। वो औरत जानती थी कि हम तूफान में हैं। जब तक हमें एहसास नहीं होगा कि हम अल्लाह के कितने मोहताज हैं, तब तक हमारी नमाज में जान नहीं आएगी। फातिमा ने रोते हुए अपनी खाला से कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी नमाज को जाया नहीं होने दूंगी। मुझे बताइए मैं क्या करूं? मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइए, मैं उस औरत के जैसा कनेक्शन कैसे फील करूं? पार्ट 5 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स। खाला ने फातिमा के आंसू पोंछे और उसे 5 बहुत सिंपल पावरफुल टिप्स दिए। अगर आप भी अपनी नमाज में वो सुकून वापस लाना चाहते हैं तो इन 5 नुस्खों का ध्यान से सुने। टिप नंबर 1, तैयारी। खाला ने कहा, अचानक शुरू मत करो। हम क्या करते हैं, टीवी देख रहे होते हैं या फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, अचानक से अजान होती है और हम भागकर जल्दी से वजू करते हैं और अल्लाहू अकबर, हमारा जिस्म तो नमाज में आ जाता है पर हमारा दिमाग अभी भी उस ड्रामे में या फोन के उस मैसेज में अटका होता है। खाला ने समझाया, नमाज से पहले खुद को प्रिपेयर करो, अच्छी तरह वजू करो। वजू के बाद 1 मिनट चुपचाप बैठ जाओ, बस 1 मिनट, और अपने दिल को बताओ, मैं अब किसके सामने जाने वाली हूँ? मैं अब अपने रब के सामने जाने वाली हूँ। दुनिया को अपने दिमाग से लॉग आउट कर दो और फिर नमाज के लिए लॉग इन करो। टिप नंबर 2, मतलब समझो। खाला ने पूछा, जब तुम अपने बॉस से बात करती हो तो सोच समझ के बात करती हो ना? तो अल्लाह से बात करती हो तो रट्टा रटाया पैरट क्यों बन जाती हो? अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है? इय्याका नअबुदु का मतलब क्या है? जब तुम कहो अल्हम्दुलिल्लाह तो दिल में फील करो कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हो। जब तुम कहो समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह ने सुन ली उसकी जिसने उसकी तारीफ की, तो यकीन करो वाकई अल्लाह ने तुम्हें सुन लिया है। बिना समझे कुछ पढ़ना मतलब ऐसा है जैसे बिना नेटवर्क के कॉल मिलाना।
कॉल कभी नहीं मिलेगी और कभी पहुंचेंगी ही नहीं। नंबर 3, रूटीन तोड़ो। हम सालों से वही 2 से 3 छोटी सूरह पढ़ते आ रहे हैं, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। तो दिमाग क्या करता है, सो जाता है, ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है। हमारा मुंह तो बोल रहा होता है लेकिन दिमाग सोया हुआ होता है। खाला ने कहा, छोटी ही सही हमें नई सूरह याद करनी चाहिए या फिर पुरानी ही सूरह को बदल बदल के पढ़ना चाहिए। और जब तुम कुछ नया पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग जाग जाएगा, अलर्ट हो जाएगा कि आज कुछ नया है और तुम्हारा ध्यान नमाज में वापस आ जाएगा। टिप नंबर 4, आखिरी नमाज। ये सबसे पावरफुल टिप है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो इस तरह नमाज पढ़ो कि जैसे ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज है। इमेजिन करके देखो, कोई आपको बता दे कि आज असर की नमाज आपकी जिंदगी की आखिरी नमाज है, इसके बाद आपकी मौत लिखी है, तो क्या आप जल्दी करेंगे? आपका ध्यान खाने में होगा या आप एक एक लफ्ज को रो रो के अदा करेंगे? आपका सजदा कितना लंबा होगा? खाला ने कहा, फातिमा हर नमाज को ऐसे ही पढ़ो, क्या पता हो सकता है ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज हो। टिप नंबर 5, सजदे में बातें करो। हमने नमाज को सिर्फ अरबी अल्फाज तक महदूद कर दिया है। खाला ने कहा, सजदा वो जगह है जहाँ बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। वहाँ सिर्फ सुभान रब्बियुल आला ना कहो, वहाँ अल्लाह से बातें करो, अपनी जबान में, अपनी दिल की बोली में। या अल्लाह मैं थक गई हूँ कहो, या अल्लाह मेरा दिल बहुत परेशान है, अल्लाह मुझे सुकून चाहिए। वो तुम्हारी अरबी का नहीं, तुम्हारे दिल का मोहताज है। जब तुम नमाज में अल्लाह को अपने दिल का हाल, अपने दुख बताओगे तो नमाज बोझ नहीं, आपका थेरेपी सेशन बन जाती है। पार्ट 6, तब्दीली। फातिमा वो 5 टिप्स लेकर घर आई तो क्या लगता है सब कुछ बदल गया, वो हवा में उड़ने लगी? नहीं, तब्दीली वक्त लेती है। दिल का मैल धुलने में वक्त लगता है। शुरू में मुश्किल हुई, दिमाग फिर भटकता रहा, लेकिन फातिमा ने हार नहीं मानी। फातिमा हर नमाज से पहले 1 मिनट बैठती, खुद को याद दिलाती, मैं तूफान में हूँ, मेरी आखिरी नमाज है। धीरे धीरे हफ्तों बाद फर्क महसूस होना शुरू हुआ। एक दिन फातिमा तहज्जुद के वक्त उठी, हर तरफ खामोशी थी, अंधेरा था। उसने नमाज शुरू की, सजदे में गई तो उसने अरबी दुआ के बाद धीरे से कहा कि या अल्लाह मैं आ गई हूँ, मुझे खाली मत लौटाना। और बस उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो आंसू डर के नहीं थे, वो आंसू उदासी के नहीं थे, वो आंसू थे कनेक्शन के। ये वो सुकून था जिसे वो सालों से ढूंढ रही थी, जैसे उसने वो रस्सी पकड़ ली हो, जैसे वो तूफान अब शांत हो गया है। अब फातिमा सिर्फ नमाज को पढ़ती नहीं थी, अब वो नमाज कायम करती थी। अब नमाज उसके लिए कोई ड्यूटी नहीं थी, बल्कि वो जगह बन गई थी जहाँ वो दुनिया के शोर से भागकर अल्लाह की पनाह लेती थी। नमाज उसका सेफ प्लेस बन गया था। हमें भी सोचना चाहिए कि अगर फातिमा बदल सकती है तो हम भी बदल सकते हैं, है ना? अगर आपकी नमाज आज खाली लग रही है तो मायूस ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हैं, इसका मतलब सिर्फ यही है कि आपका दिल, आपकी रूह अल्लाह को पुकारना चाहती है, लेकिन आप सुन नहीं रहे। वो खालीपन सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक बुलावा है। वो कह रहा है, मेरे पास आओ, सिर्फ जिस्म से नहीं, दिल से आओ। जब अगली नमाज के लिए खड़े हो तो उस तूफान को याद रखना, उस तूफान को याद करना, उस कश्ती को याद करना, सोचना शायद ये मेरी आखिरी नमाज हो। अपने सजदों को लंबा करना, अपने रब से बात करना, क्योंकि नमाज कोई एक्सरसाइज नहीं, नमाज मोहब्बत है, नमाज सुकून है। क्या आप तैयार हैं अपनी नमाज को बदलने के लिए? फातिमा की ये स्टोरी अगर थोड़ी भी आपको अपनी स्टोरी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिसकी इसे जरूरत है। क्या फातिमा की स्टोरी से आपको कोई सीख मिली या खाला की 5 टिप्स आप फॉलो करोगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हम सब की नमाज कबूल करे और हमें सच्ची और पक्की नमाज पढ़ने की तौफीक अता करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।